جی ناظرین، اسی پر ہمارے دوسرے مہمان ہیں شہزاد عرف مدیہ. یہ بلانگ کرتے ہیں گجرات سے. تو میں چاہتی ہوں مدیہ جی آپ بھی ہمیں اور ہماری قوم کو وہ باتیں بتائیں جو بالکل حق اور سچ کی اور سچ پہ مبنی ہو. اس میں کسی قسم کی ہماری کسی کے ساتھ، کسی بھی خواجہ سرا کے ساتھ کوئی ایسی جنگ نہیں کہ ہم ان کو زبردستی کسی چیز میں گھسیٹیں. دیکھیں یہ جرم ان خواجہ سراؤں کے کیے ہوئے ہیں، تو آج یہ گجرات سے یہاں پر اتنی دور حق کے نعرے کی آواز بننے کے لیے ہم ہمارے پاس پہنچے ہیں. جی مدیہ جی فرمائیے. پہلے نمبر پہ السلام علیکم. وعلیکم یا علی السلام. مدد. اور میرا مرشد خانہ ہے پیر شاہ لاڑا. یہ ادھر کے جو ہمارے علاقے کے خواجہ سرا ہیں سب کو پتہ ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی ہے. ماشاءاللہ. تو ان کا نام ہے پیر شاہ لاڑا. پیر چومے جگ سارا کڑی مڑی یا علی حیدر، وہ ہمارے مرشد ہیں. تو میری فیملی بہت اچھی ہے. میرے ماں باپ میرے پاس آتے ہیں، 10 دن رہتے ہیں. میری امی میرے پاس آتی ہیں اور امی بھی رہتی ہیں اور بھابھی ہیں. ساری فیملی میری بہت اچھی ہے. اور گجرات کے ساتھ سرگودا روڈ پہ کنجا ہے، کنجا سے میرا تعلق ہے. اور چھوٹی سی میں وہاں پہ ہی رہی ہوں، وہیں پہ پلی ہوں، وہیں پہ فنکشن وغیرہ سب کو وہیں پہ سٹارٹ کیا ہے. تو جو کنجا کے لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں. بڑے سے لے کے چھوٹے تک، عورتیں مرد بچے جتنے بھی ہیں وہ بہت زیادہ میرا محلے میں کردار بہت اچھا ہے. اور ہمارے محلے کے ساتھ ہی سعیدوں کی مسجد ہے، شانیوں کی مسجد ان کی بولتی ہیں. جمعہ نماز میرے مراسی میرے ساتھ 3 جاتے ہیں ودائیوں پہ، تو وہ تینوں بھی میرے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں. اور جمعہ پابندی کے ساتھ میں مسجد میں ادا کرتی ہوں، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. اب آپ کے نعرے کے نیچے آئے ہیں انشاءاللہ. تو 7 پاک کی ہم نے چادر لی ہے، آپ نے دی ہے، آپ نے ہمارے اوپر شفقت کی ہے. تو کنجا سے چل کے آئی ہوں. تو میری فیملی بہت اچھی ہے، ماں باپ میرے پاس آتے ہیں رہتے ہیں. میری امی بھی ہیں، ابو بھی ہیں، 4 بھائی ہیں میرے. آپ کے پاس اس وجہ سے آئی ہوں کہ خواجہ سرا نے مجھے بہت پریشان کر رکھا، بہت زیادہ میرے نال ظلم کرتا ہے. کسریا میں کنجا دے وچ رہندی سا، چھوٹی جا میاں خالد کڑیاں والے تو ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੌਰੀਏ ਖੁਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੁੰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ, 10 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਜਾਣਾ, 10 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ. ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਰਦ ਸਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਤੋਂ ਨਾ ਮਰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. کس نے بنایا سونی؟ میاں خالد نے کڑیاں والے تو پشوریے کسرے کہندے نے انہوں. اچھا آپ کا آپریٹ کون سی جگہ پہ ہوا ہے؟ یہ میرا ملکوال میں ہوا تھا. ملکوال میں ڈاکٹر کون تھا؟ اس کا نام ہے ڈاکٹر زلفی. انہوں نے اس کو نربانی بھی میری دی تھی ملکوال کسروں کو. 50,000 روپیہ انہوں نے ادھر دیا تھا میرا. سب سے پہلے جو وگیے کسرے ہوتے ہیں نا پنجابی میں آپ کو بتا دوں، جڑے وگیے کسرے ہوندے نے منڈی باولدین تو ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੋਗੀ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਮਾਈ ਖਾਲਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ. ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤਾ. ਮਾਈ ਖਾਲਦਾ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਵਾਇਆ. ਫਿਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਸਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਸਾ ਦਿੱਤਾ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ. اللہ دا شکر ہویا. میں اپنے مرشد خانے گئی، اپنے مرشد خانے مٹی پری، مرشد کو معافی منگی، نماز پڑھی، اپنا اللہ توبہ کی تھی، میں ٹھیک ہو گئی. پھر انہوں نے میرا کنجا چھڑا دیتا. انہوں نے کہا جتے گزرے رہن اوتے کپڑے، جتے جاؤ کپڑے ہوندے نے، کپڑے دا 25,000 روپیہ ظلمیے لیندے نے. کپڑا میں چاہتی ہوں اپنی زبان سے بتائیں یہ کون سا 25,000 کپڑا کون سا ہے جس کا یہ 25,000 لیتے ہیں؟ حاجی صاحب 25,000 اس چیز کا لیتے ہیں جو کپڑا ہوتا ہے، چیلا کر لیتے ہیں، اس کے اوپر گوٹے والا دوپٹہ ڈال دیا، کچھ ڈال دیا، یہ ہمارا چیلا ہو گیا. کوئی انگوٹھی ڈال دی، کوئی بالیاں ڈال دی. اپنے انہوں نے ایسے ڈھنگ بنائے ہوئے ہیں. اگر میں ان کے گھر سے نکلی ہوں میں بالیاں بھی ان کو دے کے آئی ہوں، سارا کچھ اپنے گرو کو دے کے آئی تھی. میرے پاس ابھی ویڈیو اس کی موجود ہے میاں خالد کی. اللہ کر کے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے. جو اس کا بڑا چیلا ہے اس کا نام تنویر ہے، ذات کے وہ گجر ہیں. 2 بیویاں ہیں اس نے کی، اس نے بھی آپریٹ کروایا ہوا ہے، کوٹلا کا کرالی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اس کا چیلا ہے عابدہ، اس کا نام ہے عابد ہے، وہ ذات کا مسلی ہے. اس کے جو بھائی ہیں وہ جو بھٹوں پہ اٹیں ڈالتے ہیں وہ سیری ہیں ادھر.
वो मियाँ गोंदल वाली साइड की है, ठीक है। उसने मेरे साथ ही ऑपरेट हमारा दोनों का, उसका मैं उसने करवाया या खुद मुझे नहीं पता, मेरा माई खालदा ने करवाया कड़ियाँ वाले ने, ठीक है। और 5,40,000 रुपया मेरा पेशा भी उसने उठाया। जी इसी पर मैं अपनी कौम को, ये मदिया जी की जब खरीदो फरोख्त हो रही थी उस वक़्त की मूवी मेरे पास है, तो आइए नाजरीन हम सब मिल के देखते हैं। जी देखिए। मैं बोलनी है भी सना, मैं आई हाँ कांगड़ पाटे घर विच अम्मा खालदा दे घर अपनी मदिया रानी दा पेशा करन। 5 लाख पेशा ते 20,000 चारम। 5 लाख पेशा 20,000 चारम। बिस्मिल्लाह। 5 वट में जी ते 20,000 चारम। अम्मा जी बिस्मिल्लाह सुटो। बेड़ा सुटो अम्मा जी। गलियाने तू लाले मुझसे तू ऐ लैन लगी अम्मी खालदा नू बेड़ा देन लगी मदिया दा मेरी सना गुरभाई नू ऐ बिस्मिल्लाह करके ऐ लो जी। भाइयों मैंने बेड़ा लै चलियां अपनी मदिया दा कागे आईयां कपूरी उतर चलियां 20,000 चारम कड्डी है। ए 10,000 रुपया अम्मा रांदी। हाँ जी ए 10,000 रुपया साढ़े अपने धड़े दी। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम सब नू। मैं बोल रहा मियाँ खालद करियां वाले तू मियाँ हाजी मुख्तियार दा चेला। मेरा चेला सी मदिया ते ओ टुर गया सना दे घर ते सना मेरे पेश हो गई है। बिस्मिल्लाह करके मैं सना नू नबेड़ा दे दिता वे। 5 लाख च ते 20 काट के चारम, 2 काट के नगद ते 3 काट के वडमियां दा करार 6 महीनियां दा। माइयो मैं अपने घर दा नबेड़ा दिता वे। जग जाने जान जाने ते सन्ना जाने ते मदिया जाने। कड़ियां वाले विचों सी अपने घर विचों पाक साफ करके दित्ती गई सन्ना नू मदिया। जग जाने जान जाने ते मदिया जाने ते सन्ना जाने। साडा अपना घर सी, मेरा अपना निक्का वीर सी। 100 बिस्मिल्ला, लख बिस्मिल्ला, जी आई नू ते करोड़ बिस्मिल्ला, लख लख 100 बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह माइयो। ये खालदा है जो पेशा उठा रही थी जी नबेड़ा, वो जो सना है वो मेरी गुरु थी। मैं उधर रहती थी। जो मेरा पुराना सामान था वो सारा इन्होंने कहा ये चीज़ ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, सारा बेच के मेरा सारा सामान इन्होंने नया बनवाया था, ठीक है। जब मैं इसके घर से निकली हूँ और ये मेरे गुरु था, ये कहती तुम मुझे तवीज़ डालती हो, तुम मुझे ऐसे करती हो। आप यकीन जाने मैं 50 से आई हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने अपने गुरु की जूती जब मुंह में डाल के और कुरान पाक सिर पे रख के मैंने गुरु को कहा था मैं तवीज़ नहीं डालती। अल्लाह। मैंने अपने गुरु की जूती मुंह में डाली। मेरी गुरु की यही बात होती जी, सपनी जो होती है ना वो 100 सप और सपनियाँ जमती है, वो खुद ही खा जाती है। मेरी गुरु भी मुझे खा गई थी। मैं इतनी मजबूर हो के आपके फैसलाबाद में आई हूँ। और फिर मैं उधर से मैंने अपना सारा सामान उठा लिया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जितना सामान था मैंने उधर नहीं छोड़ा। उस सामान के बदले उसने 5 लाख और जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है 20,000 40,000 रुपया ऊपर झारम निकल रही है, ठीक है। वो धड़े का होता है। 10,000 उसने उसको दिया, 10,000 उसको दिया। सना ने खालिद को दिया कड़ियाँ वाले में। उसने खुद भी ऑपरेट करवाया हुआ है। पहले उसका गिरिया भी था। गिरिया ये उसको कहते हैं जिससे ढोलकी बधाइयों पे लेके जाते हैं, रात को उनके साथ सोते हैं, उनको मालिशें करते हैं, उनके साथ सारा कुछ करते हैं, तो फिर वो गिरिया होता है। उसकी बात है मियाँ खालिद की और उसकी एक थी। मेरे साथ बहुत इन्होंने जुल्म किया। अब मैं कुंजा में दोबारा आई हूँ, मकान लिया है मैंने वहाँ पे। या जब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जब आपकी वालदा को पता चला कि आपका ऑपरेट हो गया तो उस वक्त उनकी क्या कंडीशन थी? तो मैं तो नाजरीन में पहले भी आपको बताया कि जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था मेरी उम्र थी 13 बरस और मेरी वालदा उस वक्त से लेके आज तक इसी सदमे में है कि मेरे बेटे के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हमारे अंदर एक रूह ज़रूर होती है, लेकिन हम जिनसी तौर पे ये जितने भी ख्वाजा सरा मांग रहे हैं इस वक्त, जिन लोगों ने अभी जुल्म की इंतहा की हुई, सब मर्द होते हैं। तो क्या उस वक़्त माँ बाप पे बीती होगी जब आपके घर पे पता चला होगा कि शहजाद ने ये काम किया? तो बस गुनहगार है माँ बाप के भी और अल्लाह के भी, हम बहुत ज़्यादा। मेरी माँ को अभी तक किसी बात का पता नहीं। इस बात को और इस सिलसिले को शुरू हुए हुए मेरे साथ
4 साल हो गए हैं बस। 4 सालों में इन्होंने मुझे 5 लाख का भी कर दिया है। अब मैं कुंजा में दोबारा आके बैठी हूँ, वहाँ पे मैं बधाइयों पे जाती हूँ। ये अल्लाह के नाम का हम लोग मांगते हैं, अल्लाह के नाम का हम यहाँ बच्चों का सदका लेके खाते हैं। अब जो कुंजा में घुस रहे हैं, जो मुझे जीने नहीं देते बिल्कुल, जो मेरे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं इस वक्त। यानी कि सदके के पैसों से गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी हो रही है। अल्लाह। जो कुंजा में है उसका नाम है शबनम उसे कहते हैं, उसने भी परेड करवाया हुआ है। एक घर में मैं बधाई लेने गई, वो मेरे पीर भाई थे। जब मैं उनके घर इंटर हुई हूँ तो वो मुझे देख के कहते हैं ये मदिया आ गई है, यही इधर बधाई लेगी। मैं वहाँ पे नाचना शुरू हो गई, वो बेले चले देने शुरू, ऊपर से ये खुसरे आ गए। वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। इन्होंने कहा ढोलक बंद करो, मैंने कहा खबरदार, मेरे मरासियों के साथ कोई बात नहीं करनी, मेरे साथ करो। उस दिन मैंने इनको घरों से निकाल दिया। तो उसके साथ जो मर्द था उसका नाम डोरी उर्फ जुल्करनैन है, जात के वो मिर्जे हैं। अभी उसे ये 1.25 महीना, अच्छा ये 1.25 महीना भी कहते हैं, अभी 30 तारीख को उसका 1.25 महीना होना है। यानी आज से 1.25 महीना पहले उसका ऑपरेट हुआ है। जी, ये जो 30 तारीख आएगी वो उसकी गोद भराई की रस्म करेंगे। अच्छा वो मर्द था, जब मैंने इनको उनके घर से निकाला, इसने आते ही उसका ऑपरेशन करवा दिया। वो उसकी क्या वजह? उसकी ये वजह है कि ये मैंने भी ऑपरेशन करवाया हुआ है, मेरा खालदा ने करवाया हुआ था। इसने कहा ये लड़का हुआ, अगर किसी ने शलवार उतारी तो नीचे से ये लड़का होगा। उसको ये इस वजह से उन्होंने ऑपरेट उसका भी करवा देता। अब ये सारे, इसका नाम एक और है, उसका नाम है जट्टी, जट्टी उसे कहते हैं, और उसका नाम घर का जो है ना वो है चौधरी रियासत अली। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, क्या नाम लेते हैं, आपको उस डॉक्टर का पता जिधर से ये सोनिया का ऑपरेट हुआ, जिसको आप डोरी डोरी कह रहे हैं, आपको पता उनका ऑपरेट भी वहीं से हुआ जिस जगह से आपने ऑपरेट करवाया? जी, ये शब्बों ने करवाया है। जिस डॉक्टर से मलकवाल, जो वो इधर बेरे में भी रहता है और मलकवाल में, उसका नाम है जुल्फी, उस डॉक्टर से शबनम ने करवाया। शबनम को सारा पता, आप उस शबनम को पकड़ें और वो भी पकड़ी जाएगी, ठीक है। और उसका नाम एक और है, उसका नाम बानो है, उर्फ नाम उसका सदीक है। अब वो भी मर्द है, वो भी उन्हीं गांव में जाता है बदंगा लेने, मैं भी जाती हूँ। अब ये उनका उसका भी ऑपरेट करवा रहे हैं। इन्हीं दिनों में ये 1.25 महीना ना आके उसका भी ये फौरन करवा देंगे। ये लड़के खराब कर रहे, अच्छे कर्द मर्द होते हैं। अल्लाह। अगर कौन सा खुश रहा है, हम जेवर पहन के नमाज पढ़ सकते हैं, हम ये कानों में डाल के नमाज पढ़ सकते हैं। मैं खुद जुमा पढ़ने जाती हूँ, मैं कोटकी में जाती हूँ जानी के मर्दावा कपड़े में, मैं कड़ियाँ वाले नमाज पढ़ने जाती थी। तो मेरा गुरु ये बातें कहता था, बच्चा मस्जिद में ही रहे रहो। मस्जिद में रहे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मोहल्ले में कोई देखेंगे ये लेडीज कपड़े फिरका पहन के बदांगों पे जाते हैं, फौरन ये मर्द बन जाते हैं। फिर ये मस्जिद, वो कहती थी बच्चा उधर मस्जिद में रहना। जिसको कुरान पे यकीन नहीं हुआ, मुंह में जुत्ती मैंने डाली थी कि मैं तवीज़ों का क्या करना है हमने। मुझे अल्लाह का इतना करम है, इतने मेरे मुर्शद के रंग हैं, और मेरे मोहल्ले के जितने इतनी दाढ़ियों वाले मुझे ऐसे सलाम करते हैं। और जो जट्टी है, जो नरगस है, उसने मेरा करवाया था पेशा। अच्छा, यानी जट्टी ने आपकी खरीदो फरोख्त करवाई थी। उस खालदा और जो जट्टी हैं, ये दोनों बहनें बनी हुई हैं खुसरो में। जट्टी ने कहा था भरवा पेशा चुकी, परवा पेशा चुकी, इस मूरत दा परवा पेशा चुकी है ने जुल्मीए ने करवाया जट्टी ने। और मैंने मंगण नहीं देंदी, क्यों, मैं कितने जावा, मैं खुसरा नहीं, इन्हां ने बनवाया। दूसरी मजे की गल, मैं साडी जात खुसरियां दी पिछोर गए वे, जिन्हां दी मैं मंगनियां भी पिछोरियां। चाचे बाबे दा खान दा हक है कि नहीं है? मदिया, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, फकीर की कोई जात नहीं होती। बेशक। और आप देखो, ये कहते हैं कि हम फकीर हैं, तो फकीर की कौन सी जात होती है भाई? ये कहीं पे भी मांगे आप, कैसी देखिए, अगर अब आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, आप जिधर भी मांगते आप जी भर के जिधर दिल चाहे जाएं, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने आपको एक हदायत का रास्ता अता फरमाया, अपने हक़ के नारी की आवाज़ को बुलंद किया। और देखिए, अगर मैं अपनी कौम को बताना चाहती हूँ कि जब इन लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है
ये अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए इनको एक यही तो है कि ये गदागरी करते हैं, लोगों की खुशियों में जाते हैं, उनके बच्चों की खुशियों में जाते हैं और अपना रोज़गार करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। भाई की बातें सुन रहे हैं, इस तरह की बहुत से मेरी कौम के बच्चे हैं जो इन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं और इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अभी आपके तावन से आने वाली हम नस्लों को बचाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, बल्कि बार बार आपसे हाथ बांध के अपील करती हूँ कि खुदारा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको सदका जारिया समझकर घर इस मुहिम को घर घर लेके जाएं। इसमें हम एक वो नेकी का अमल करना चाह रहे हैं। इसमें इस तरह है कि हम आप लोगों के साथ शाना बशाना इन लोगों को हिदायत के रास्ते तक लाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको, हमें और जितने भी इस कौम में लोग जो ख्वाजा सराओं की फील्ड में, हम सबको माफ़ फरमाए, बल्कि मेरी पूरी कौम को माफ़ फरमाए। अगर आप आज के बाद आपने किसी के बच्चे की ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह मैं कानून के साथ आप लोगों के पीछे हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपको आपके कैफरे करदार तक लेके जाऊंगी। कानून को और अदलिया को अपने साथ लेके चलते हुए इंशाअल्लाह ताला इन माओं के बच्चों का बदला हम ज़रूर लेंगे ताकि आप आने वाली नस्लों को तबाह मत कर सकें। इसी पे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं हूँ आपका मोहसन और आप देख रहे हैं मोहसन बंटी ऑफिशियल।